कर लो पहले. How many bugs have you found and where do you assign once found? So how many bugs I have found, like, so since in my last previous 3 years career, I can't exactly count, but I think more than 1,000 maybe, because in every releases every month I'm finding more than 20 to 30 defects. So I don't exactly say the count, but yeah, overall in my experience, more than 1,000 I can say. Another question can be asked, like, how many defects you have found recent release? Yeah, the recent release, but exactly you found like 15 defects where you can consider as a, or you can make the genuine 17 or something. There was 5 critical, right? And maybe 3 to 4 medium, बाकी लो बता सकते हो severity. Yeah, so stoppers भी बोल सकते हो, whatever. Then again, can we ask the questions in automation? Are you also getting the defects? Yes. So recent regression, right? Once we executed our suit, so there was around, let's say, 380 test cases, and in those using automation also we found around 4 defects, I think, and those were not a blocker, but yeah, medium and lower. So then again you have to answer कि वो पूछ सकता है किस टाइप का डिफेक्ट था वो. So at least you have to be keep those words in mind कि क्या डिफेक्ट था according to your project. And where do you assign them? Assign them Jira. Jira. So if we are using the Jira, so we are raising defects into the Jira. अपने कंपनी का भी टूल हो सकता है. हाँ, कंपनी का टूल का नाम पता होना चाहिए, बट बेटर है कि जीरा यूज करो. जीरा बोलो अगर तुम्हारी कंपनी का टूल है तो वो, लेकिन जीरा एक्सपेक्ट करेंगे, राइट? क्योंकि जीरा हर जगह है. ओके, नेक्स्ट. What is a DOM? डॉम. डॉम मीन्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. सो जब तुम एप्लीकेशन ओपन करते हो तो बेसिकली तुम डॉम में ही जाके एलिमेंट को इंस्पेक्ट करते हो. तो ये जो होता है डेव टूल, राइट, जो इससे इंस्पेक्ट करते हो एलिमेंट. तो एलिमेंट ये हमारा जो कोड होता है जहाँ पे हम एचटीएमएल कोड को व्यू करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं एलिमेंट को, बेसिकली दिस इज द डॉम. So document means document object model. So where we can inspect the element, we can, so basically all those HTML code where we can right click on the element and inspect in HTML form, and we can create our XPath. Generally that is the DOM that we can find using the Chrome Dev tool, right? Same. You can press F12 or something directly, you can do it. What is the basic difference between XPath, like, and in XPath, like, types of it, absolute and relative? So there is a like one difference. First difference you can say, like, absolute XPath starts from single slash and dynamic XPath starts from double slash, right? And absolute XPath is like, it is a like a static XPath. Like suppose if you are inspecting any element, right? So it will give the hierarchy from starting, right? But dynamic XPath, directly we can go to that line using double slash, right? So that's the thing. Then again, they can ask like which one is better and why. So absolute XPath can be changed because this is you are using the hierarchy, and in between any of the elements can be added, then entire XPath should be shifted, right? So better to avoid those. So generally we are using the relative XPath. Then again, there could be the questions, what could be situation where you should use the absolute XPath? So where we expect like there's won't be having any changes within a code, especially in hierarchy, then probably we can use the absolute XPath. So at least on every pages, if you are thinking at least one element, you can have use at least end element, last element you can use it with the help of absolute XPath. Or maybe if you want, like just like I can give you the logo example. So you want logo position also shouldn't be changed, because if you use the relative XPath, might be that logo could be placed on right hand side, but still it will find and it will perform the action, your test will pass. But you are expecting this should be the on left side. So at that moment, we can use the absolute XPath if we want to test in that way. Element position as well, right? So sometime, so it could be the discussion part, maybe. But clearly, if you're not confident, you can clearly say, I haven't used the absolute XPath, but because this is the reason, because maintenance required, right? So we are using the relative. Simple.
Sir, Yes, go ahead. sir, if they ask कि how we can use Selenium WebDriver, मतलब कमांड लाइन के थ्रू कैसे रन करना है, ये पूछ सकते हैं क्या? पूछ सकते हैं, तो कमांड लाइन के थ्रू भी तो रन कर सकते हैं ना। जैसे पर्टिकुलर हमारा फ्रेमवर्क होता है, राइट, तो फ्रेमवर्क को हम मैबन कमांड होता है ना, एमवीएन टेस्ट कमांड से हम रन कर सकते हैं, जैसे जेनकिंस जैसे रन करता है। तो जेनकिंस जेनकिंस तो कमांड से ही रन करता है ना, तो कमांड लाइन ही है वो। तो जैसे एमवीएन क्लीन कंपाइल टेस्ट, ये जो सारी कमांड्स हम पास करते हैं, तो अपने पूरे फ्रेमवर्क को हम वैसे ही रन करते हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट को कमांड लाइन से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, सिंपल। और सर ये जो हम वी टाइगर वाला जो बना रहे हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं वी टाइगर, तो जैसे हम वो बता सकते हैं कि जैसे मेरा तो पूरा मतलब है ही नहीं बैकग्राउंड टेस्टिंग का, तो हम वो प्रोजेक्ट बता सकते हैं क्या कि उस पे बता काम? सकते हैं, बता सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये तो ऑनलाइन प्रोजेक्ट ही है पूरा, इसको ऑनलाइन कोई भी देख सकता है जाके, vtiger.com है ना। ये तो एक कंपनी है, एक तो प्रोडक्ट है, इसको कोई भी सर्विसेज इसकी खरीद सकता है, यूज कर सकता है, कस्टमाइज करा सकता है। तो You can मतलब use it. ऑफिस वगैरह में यूज हो सकता होगा ना, मतलब? डेफिनेटली, क्योंकि ये ऑनलाइन है ना, रियल प्रोजेक्ट है, तो इसको यू कैन यूज इट, यू कैन शो इन योर रिज्यूमे, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। ओके। ओके, Can you share your experience in dealing with iframes and nested iframes while using Selenium for web provision? Specifically, how have you successfully navigated and interacted with iframes? you're right. So answer is, Selenium doesn't work directly on the element. Selenium doesn't act directly on the element if that element is present under the iframes or frames, right? So what we have to do first, how we can get to know first of all, right? So suppose if we are finding the XPath successfully within a DOM, but if we are trying to run the same code and we are getting the error like unable to locate element, element not found exceptions. So it means element is there, even within with the help of XPath, we can easily locate that element within a DOM, but still it is not working. Then there could be the possibility like maybe element would be in frame. Then how we can check that? So directly what we can do, I can give you the even example. I can show you the examples. Iframe examples in Selenium. So right, so here suppose this is the element, this is the sample page. If we want to inspect it, we can inspect it within XPath using XPath. But if we want to retrieve this text, we cannot, because we are unable to interact with that element. So how we can identify is it under frame or not? So basically you can't normally judge that this is this is in iframe or not, right? So what you can do is simply you can right click on that element. You can see here like view frame source, reload frame something. So if you can see frame options, it means this element present under the frame. Now then if you first you have to switch to the frame, then you have to write the code driver dot switch to iframe, and first of all you have to find the frame. So for that purpose, you have to inspect that and you have to find that frame ID or frame name, anything, right? So here you can go check it here from like this is the iframe, and here you can get the frame ID. Then the code you have to write driver dot switch to frame, and under that double quote you have to pass this frame. So once you will get switched, so then you can perform your operations on that element. Then you can successfully perform your option. And you want to move back again, you want to move out from the this frame, then you have to use the code driver dot switch to default content. If you want to move out from the frame again, if you want to switch to the nested, then again you have to write again this code driver dot switch to frame. Again you have to find inner frame IDs. Simple. Okay, next. How do you handle testing for integration with third-party APIs? Third-party APIs. So do you know any third-party APIs? So here I can say normal example, right? So third party is like test changes third party.
Selenium is also third party, but we are using Selenium API and TestNG API to work. We have integrated Selenium and TestNG within our framework, right? So the Selenium API provides the mechanism. We know the classes, we know the methods. Directly we can interact with it, right? So this is the simple example. And if you are talking about especially any specific API, like suppose we have yatra.com and we want to implement that, like Indigo's flights, SpiceJet flight, all the flights should be displayed here, then definitely internally we have to call those APIs. So that is a part of developer. Developer has to integrate that, but we have to test the integration testing. Like, are we getting those informations from those companies or not? So by that way, we have two options to test that API. Either we can test those APIs individually using Postman or REST assured, or what we can do with the help of this UI application also, we can fetch that informations. Like, so what we generally do, so suppose if we have some applications, like let's say any of the application, let's say yatra.com. Right now we are searching the flight, suppose. So if you want to see which API is triggering here, right? So we can do again, right click, inspect. Okay, and there we have a network tab, and within a network tab, generally once we will perform any operations on the UI side, right? Generally whatever the API is integrated or wrapped within a code, or what API generally developer is calling based on this click, generally we can get it from here. So API is running, right? And it will give us the response. So here you can you can directly tell, like within a network tab, we can get those APIs. We can see APIs, request, response, everything. And sometimes maybe questions can be asked in different way. So suppose you have found the defect on the page. How you can make sure this is the API defect or this is the UI defect? Suppose you are unable to log in, but this could be the problem with UI or with API. So basically what we can do in that situation, we can go into the network tab and we can fetch the API. And if we can say if API is successfully responding, right, but still we are unable to log in, then it could be the UI error. But if it's getting the error from API as well, right? User ID is invalid, we are getting that information within a API, then we can raise the defect for API because API itself not working. समझ गए? तो ये सारी चीजें हमें यहीं से नेटवर्क लॉग में एपीआई को चेक कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Explain the challenges while designing the framework. While design our framework. Okay. So जनरली तो मुझे कोई चैलेंज नहीं आता, बट अब तुम्हारे हिसाब से तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या फेस करते हो. तो सिंपल, you already know how to design the framework, right? So initially, based on your knowledge, you started working on it, right? So slowly you get to know, like you started first Chrome browser, right? And you have written couple of test cases and you have given the demo and that was successful. Later on, now once you start expanding that framework, right? How to handle multiple browsers, how to handle parallel executions, right? And doing the parallel execution, how entire reports should be come into in single reports, right? So that moment there was the challenges, right? So integration of parallel executions. So something you can ask, reading the data. So earlier you were reading the data using the Apache PY. So for maintaining those purpose, so you have to write multiple functions again and again, like get cell data, set cell data you have already used, but you have, for that you have written another class as a utility, right? Then again you get to know, like this is the use code. Then instead of that you use the Philo, and Philo makes your life easy. Then based on the problems, I'm keep on improving our framework. I'm yet to I can't say 100% like everything is smooth, because still whatever the functions required, generally we have written those utility functions, but still there are many functions which is required, but we have to develop. Just like suppose if we have to do some validations within a PDF, we don't have that. We have to write it because we have to validate those content from the PDF. So that is still not there.
We need that. We need to write it, right? So couple of things based on your application, you find out the challenges. And sometimes also people can ask just not for the framework point of view, but also from the automation point of view. What are the challenges you are facing in automation? No, this you can directly say. So we have challenges like, because the challenges, whatever you tell them, that could be the that would explain your experience. Like based on your answers, they can justify your experience. So you should have plan accordingly, right? What are the question answers you are getting? So one challenge could be mostly we are getting the frequent XPath changes, right? So that is around 20%. So that is the common challenge, right? Second thing, we have the issue with the synchronizations. Although we are using the WebDriver bit, but sometimes we are facing that challenges also, right? So this could be the second, but that is not a big deal. We are also making improvement there. But the recent challenges now in our applications, there is a shadow root concept. Shadow root, याद कर लो. Shadow root concept. So अगर आप सर्विस नाउ का एप्लीकेशन होगा तो वहां पे बहुत मिलेंगे ये. तो शैडो रूट में जब एलिमेंट्स होते हैं तो उसको आप इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते एक्सपाथ से और डायरेक्टली उस पर काम नहीं कर सकते. तो यहाँ पे सेलेनियम का चैलेंज होता है. तो देन इन दैट सिचुएशन यू हैव टू यूज आइदर CSS selector or JS path. Rather than XPath, you have to use JS path or CSS selector, then you can work on it. And finding the JS path is itself a difficult, and if shadow root is nested, then that could be difficult to write the code. So there is a difficulties. So at this moment, somehow we are handling because it is available in few pages, but there could be the thing what I had in recent discussion with developers, like it could be, it can come in many places. Then we have to maintain our scripts accordingly. So this is the one challenge. And other challenges, we have a data issues. So data issues, you can justify your applications accordingly. Next. Yeah. That's nice. Okay. So in that situations, if suppose you have a 4 windows and you don't know which window that element is present, so basically what you will do. So first you will use the code like set is equal to driver dot get window handles. It will give you all the windows, right? Then you can put the loop for each loop where one window column all windows. So you have to switch one by one each windows and you have to find the elements, right? And you have to put try catch as well, because if element will not found on one page, it will throw the exception. So you have to handle the exceptions as well within a loop, and it will run. It will go one by one each window, and it will perform that action over that on that element. If you find that is displayed, you can say that this is on this page, right? Otherwise, it will run into the loop, and you have to handle the exceptions as well. By this way, you can get it. सही है? नहीं पता था? तो वही तो पूछ रहा हूँ फिर. ट्राई कैच नहीं करोगे तो फट गया, पहले में नहीं मिला तो दूसरे में जाएगा नहीं. तो ट्राई कैच मैंडेटरी. Explain stud and driver in APIs. कौन से? Stud and driver. ओह, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, स्टब एंड ड्राइव. नाइस क्वेश्चन. पता है मुझे, बट मुझे एग्जांपल चाहिए एक. क्या होता है स्टब? TUB. हाँ स्टब. मैंने ठीक एग्जांपल दिया क्या? कि अगर फ्रंट बना नहीं है अभी, तो फिर हमको जो अप्रोच करना रहता है, तो फिर हम ड्राइवर्स को रहते हैं कॉलिंग फंक्शंस और स्टब्स रहते हैं कॉल्ड फंक्शंस.
ऐसे करके दिया था। टेम्पररी प्रोग्राम बनता है। So in API context, software testing step and driver used to testing the individual component, especially when the system is not yet fully implemented. They serve as a temporary replacement for part of the system that are not available into the testing yet. So however, they differ. So stub is a piece of code that simulates a lower level component or a module that is a higher level component depend on. Right? Okay. Use case. It is used when you are testing a higher level module that calls another module, but the dependent module are not available or fully implemented yet. Okay. A stub mimic the behavior of actual component returning the hard-coded response of the specific input. Example, if you're testing a service that need to communicate with the external API, but the API is not ready, you can use the stub to return the fixed response when your code tries to call the API. तो सिंपल थिंग है. तो ये एक मैकेनिज्म हो गया कि तुम्हारा एंड पॉइंट एक एपीआई कॉल किया, बट वो एपीआई इंटरनली दूसरे एपीआई को कॉल कर रहा है, राइट, बट दैट एपीआई इज नॉट अवेलेबल. सो एटलीस्ट इसको कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो ये आगे कैसे काम करेगा. तो एटलीस्ट वहां से उस एपीआई की जगह से हम इसको स्टेप यूज करके हार्ड कोडेड एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स ले सकते हैं जिससे ये आगे मूव करे. तो ये पर्पस के लिए ये यूज होता है. तो इसको कैसे करते हैं अब ये देखो. दिस इज जस्ट लाइक what the functionality is not yet developed, so you can use the placeholders. हाँ, तो जैसे हो गया इन जावा, बोलो ये पाइथन का कोड है. So stub is a dummy implementation of a method component. चलो ठीक है. अब इसके लिए क्या हुआ कि वेदर सर्विस मान लो एक है, इसने वेदर स्टब करके एक सिंपल सा एक क्लास नया बनाया और उसमें उसने क्या बोला गेट वेदर. अब गेट वेदर में ये क्या करेगा, ये 3 पैरामीटर जाएगा. अब वहां से जब रिस्पांस लेके आएगा, मान लो एपीआई ने एक्चुअल रिस्पांस नहीं दिया तो वहां से हार्ड कोडेड हम रिस्पांस तो भेज सकते हैं ना, कि सपोज करो कि लोकेशन दिल्ली है, टेम्परेचर 25 है, ये है व्हाटएवर. तो एटलीस्ट बेस्ड ऑन दैट आगे कंसेप्ट तुम मूव हो. तो ये काम हो गया हमारा स्टब का. अब ड्राइवर्स क्या होता है, ए ड्राइवर इज इन जावा पीस ऑफ कोड, राइट, that call the method or component you want to test. So it simulates the behavior of higher level module that would eventually interact with the component being tested. So example of driver. So discount calculator. तो calculate discount, तो यहाँ से हमने दिया तो ये प्राइस रिटर्न किया, तो कैलकुलेटर में हमने ये डेटा पास किया और ये हमने रिटर्न करके दे दिया. तो मतलब एक ये भी डमी ही है, बट ये एक्चुअल कोड में फंक्शंस हो गए जो फंक्शंस हमें वैल्यूज को रिटर्न करेगा. तो यूजिंग स्टब, so this is example driver calculator act as a test driver that involve the discount calculator and check the behavior without high level application logic in place. तो जो एपीआई कैलकुलेट करके देता है उसकी जगह पे हमने क्या बना दिया, एक फंक्शन जो कि वो डेटा कैलकुलेट करके देगा. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया इसने, यूजिंग स्टेप एंड ड्राइवर यूजिंग यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क. अब मान लो डेवलपर ने कोड लिखा तो यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क में वो टेस्ट करेंगे. तो कैसे करेंगे, इन प्रैक्टिस यू कैन यूज फ्रेमवर्क लाइक JUnit इन जावा लाइब्रेरी लाइक मोकितो तो क्रिएट स्टेप एंड ड्राइवर. तो मोकितो जो होता है वो यूज होता है इसके अंदर. तो इसके अंदर जैसे वेदर टेस्ट सर्विस, तो टेस्ट आपका टेस्ट केस क्या कहता है, टेस्ट वेदर सर्विस विद स्टब, जिसमें आपने क्या किया कि मॉक, तो मॉकी तो यूज किया, तो वो मॉकिंग के लिए यूज होता है. तो मॉकिंग का भी पर्पस क्या होता है ऐसे समझो एपीआई में, कि अगर एपीआई का सर्वर डाउन है ना, फिर भी आप चाहते हो कि आपकी एपीआई रन करे, तो वो क्या करता है, वो सर्वर को मिमिक करता है. मतलब वही उसी की कॉपी, मतलब अगर एक बार तुमने एपीआई रन किया हुआ है तो उसका सर्वर का रिस्पांस वगैरह वो कैसे में अपने स्टोर करके रख लेता है. और बाद में जब एपीआई तुम रन करते हो, सर्वर डाउन है, तब भी वो आपको रिस्पांस देगा, क्योंकि वो क्योंकि वो तुम मॉकिंग यूज कर रहे हो वहां पे, राइट. तो मॉकिंग से वो क्या करेगा कि तुम्हारे रिस्पॉन्ड देगा. अगर सर्वर एंड पॉइंट नहीं भी अवेलेबल है तब भी वो रिस्पॉन्स करके एपीआई तुमको देगा बेस्ड ऑन प्रीवियस हिस्ट्री. तो ये मॉक सर्विसेज स्टार्ट करनी पड़ती है लोकल पे. तो यहाँ पे व्हेन न्यूयॉर्क पास किया और पर्टिकुलर ये डेटा पास किया, ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस लिखे गए हैं बेसिकली. तो कैसे हम ये यूज करते हैं, तो ठीक है, ओवरऑल कंसेप्ट ये एक्सप्लेन कर सकते हो. तो टेक अवेज क्या है,
सिमुलेट ए लोअर डिपेंडेंसी और ये हायर लेवल डिपेंडेंसी। बस, तो लोअर लेवल पे डिपेंडेंसी है तो वी कैन यूज स्टब, एंड हाई लेवल अपर एप्लीकेशंस पे है डिपेंडेंसी तो वी कैन यूज ड्राइवर। और both are the temporary test implementation that facilitate isolated testing during the development processing। ये हमारे पास हम सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, बट इंटीग्रेशन हमारा ना तो डाउनस्ट्रीम सिस्टम से है ना अपस्ट्रीम सिस्टम से है, बट वी हैव टू मिमिक दैट end-to-end testing। So in that case we can use the stub and drivers। तो stub that will help us to test lower environment and driver will help us to manage the upper environment, upstream environment। इसका एक्सटेंडेड क्वेश्चन था कि क्यों मतलब क्यों ये वो यूज किया था, तो फिर मैंने ऐसे आंसर दिया था कि स्प्रिंट 1 में पूरी फंक्शनलिटी नहीं बनेगी, तो उसमें जितना हम यूज कर सकते हैं जावा ड्राइवर करेंगे, फिर जैसे जैसे स्प्रिंट 2 में आएगा 3 में आएगा। या सिंपल सी बात है कि एक एपीआई बने, इस एपीआई की डिपेंडेंसी है, चेनिंग एपीआई है, राइट। अब चेनिंग एपीआई में जैसे क्रिएट ऑर्डर, तो क्रिएट ऑर्डर से पहले साइन अप लॉगिन ये सब होना चाहिए, तब वो ऑर्डर क्रिएट होके आएगा, और ऑर्डर क्रिएट होने के बाद ऑर्डर प्लेस होगा, वो सब की एपीआई बात की है। तो अब इसी एपीआई को टेस्ट करना है तो उसको पहले उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे सेशन आईडी चाहिए, यूजर आईडी, पासवर्ड चाहिए, कौन यूजर है, वो हमें कहाँ से मिलेगा, तो वी कैन यूज द ड्राइवर। और ऑर्डर प्लेस करने के बाद चूंकि अनदर पेमेंट गेटवे तो इंप्लीमेंटेड है नहीं, तो पेमेंट रिसीव हुआ कि नहीं यूज हुआ तो उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, तो इधर से ऑर्डर सक्सेसफुल हमें तो करना पड़ेगा ना एपीआई का, तो फिर वो ऑर्डर नंबर जनरेट करके दे, उसके लिए भी हमने एक स्टब यूज कर लिया। तो ये एपीआई तो टेस्ट हो गई ना इंडिविजुअल, दिस इज द स्टब एंड ड्राइवर्स। तो क्रूड मतलब CRUD, तो C से मतलब क्रिएट, R से मतलब रिट्राइव, U से मतलब अपडेट एंड D से मतलब डिलीट। तो जो एपीआई होती है आपकी, जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो गेट, पोस्ट, पुट, पैच, वही होते हैं क्रूड ऑपरेशंस। हाँ, तो यही ऑप्शन हो गया। जैसे C से क्रिएट मतलब हम जो भी पोस्ट एपीआई रन करते हैं तो वो हमारा क्रिएट हो गया, क्योंकि वो जाके डेटाबेस में डेटा क्रिएट करता है। आर का मतलब रिट्राइव, तो सारे गेट एपीआई जो होती है वो रिट्राइव करते हैं इन्फॉर्मेशंस को, तो वो हमारा आर हो गया, मतलब रिट्राइव हो गया। और यू का मतलब अपडेट, अपडेट के लिए पुट पैच यूज करते हैं। फिर डी का मतलब डिलीट हो गया। सिंपल, क्रूड का फुल फॉर्म ही यही है। तो ये बताने के बाद वही बोल सकते हो ना कि जैसे हमारा साइन अप है तो वो क्रिएट हो गया, डेटा क्रिएट करता है, तो पोस्ट एपीआई हो गई। फिर सपोज करो गेट गेट कस्टमर डिटेल्स, तो ये हमारा गेट इन्फॉर्मेशन हो गया, रिट्राइव कर रहा है कस्टमर की डिटेल डेटाबेस से। फिर अपडेट कस्टमर डिटेल्स एपीआई है तो वो पुट हो गया, राइट। फिर डिलीट, डिलीट कस्टमर, डिलीट हो गया। नेक्स्ट, Abstraction and how can we achieve 100% of abstraction, and like where are we implementing in our framework? okay, so simple thing. First of all, what is abstraction? So abstraction is a OOPS principle, and you can say the mechanism where if we want to show the relevant information to the users and hide the unwanted informations to the user. For achieving the abstractions, first we have to create the abstract class using abstract keyword. Then we have to create the abstract method using abstract keyword without implementation. Yeah, without body. So if we want to achieve 100% abstraction, then in abstract class, whatever the methods we are defining, all methods would be abstract. So it means now you have achieved the 100% abstract. So you cannot directly create the object of abstraction. So you need the child class where you have to extend that abstract class into the child class. Then you have to implement those methods into the child. And then you can create the object of child class, and then you can call those methods. This is your answer. Now, where you have implemented abstraction. So abstraction is the best example of your WebDriver. So WebDriver is the interface. Our interface is by default 100% abstract. So whatever the methods is available within a WebDriver interface, those are unimplemented within a WebDriver. And Chrome driver class has implemented this. So this is the real-time example. And similarly, you have a web element interface. In web element interface also, click,
find element, send keys. These methods are defined into the web element interface. Right? So these are also abstract methods. तो abstraction का concept तो बना ना ये. हाँ, जहां जहां इंटरफेस का कंसेप्ट आया एब्स्ट्रैक्शन आ गया ना, क्योंकि वो 100% एब्स्ट्रैक्ट ही तो होता है. तो एब्स्ट्रैक्शन इज अ कंसेप्ट. तो इंटरफेस यूज करके भी तो एब्स्ट्रैक्शन अचीव होता है, 100% होता है. Your web application has a functionality that you logged in from India, it will show location as India. India VPN से. And if you're logged in from London, it will show location as London. तो इसने जो कंसेप्टेशन करेंगे. That's very nice question. So now we have to understand the logic how developer is launching this, right? Or maybe if there could be the options, right? If we have like url.co.in, might be it would be the India. If you have co.uk, it could be the in UK. But if URL is same .com, we don't know, because globally anybody can use it. Now then, based on geographical location, maybe IP address. So how developer are navigating this, right? So once it will hit that URL, and based on maybe we have to pass the IP address, and based on IP address, first we have to understand the logic, how developers are redirecting it into that site. So based on IP address code, if we will get to know this code, based on this code we can define the country or whatever, or MAC address whatever, right? So logically मेरे हिसाब से तो IP address होता है. IP address से पता चलता है कि तुम कौन से लोकेशन पे. VPN से कनेक्ट नहीं होगा. अब VPN हो या ना हो, बट IP एड्रेस से हमें लोकेशन पता चलेगा ना. अब VPN कनेक्ट होगा तो तुम तो फिर तो नेटवर्क को ड्राइव ओवरराइड कर रहा है, लेकिन एंड यूजर VPN से नहीं कनेक्ट करेगा ना. एंड यूजर VPN से कनेक्ट नहीं करेगा, तो हमें IP एड्रेस से उसका लोकेशन पता चलेगा. तो वही कंडीशन जो लॉजिक उसने यूज किया है, उसके ऊपर हम अपना टेस्ट केस लिखेंगे कि अगर IP एड्रेस समथिंग लाइक दिस, तो हम क्या कर सकते हैं फिर इसकी टेस्टिंग करने के लिए. तो हम VPN कनेक्ट करेंगे डिफरेंट लोकेशन का, कि जैसे हम यूके नेटवर्क से VPN कनेक्ट करेंगे, फिर लॉन्च करेंगे तो यूके वाला आना चाहिए. फिर हम यूएस का VPN कनेक्ट करेंगे तो यूएस लॉन्च होना चाहिए. और हम खुद इंडिया में बैठे हैं तो विदाउट VPN करेंगे तो इंडिया ओपन होना चाहिए. तो बाय दिस वे वी कैन टेस्ट इट. ऑनलाइन वाले तो अभी सो रहे हैं ना. दीपा, भाग्यश्री, ईशा, महेश, तुम लोग को भी कुछ डाउट हो, क्वेश्चन तो पूछो. सर जो java.util.concurrent जो पैकेज है उसका मेन पर्पस क्या है? java.util पैकेज, util.concurrent पैकेज. concurrent. तो java.utility पैकेज जो होता है वो बेसिकली जो कलेक्शंस के लिए सारा जावा की जितनी भी यूटिलिटी है उसके लिए यूज करते हैं. तो java.util.concurrent. ओ मल्टी थ्रेडिंग के लिए यूज होता है. मल्टी थ्रेडिंग. हाँ, तो पैकेज प्रोवाइड द सेट ऑफ हाई लेवल concurrency utilities which facilitate multi threaded programming, राइट. अब मल्टी थ्रेडिंग यहाँ पे कैसे होता है कि मल्टी थ्रेडिंग में जैसे होता है कि पैरेलली आप एक ही एप्लीकेशन में 100 यूजर्स लॉग इन कर सकते हैं. ओके. तो वो आपका एप्लीकेशन ऐसा होना चाहिए ना कि वो मल्टी थ्रेडेड हो, कि 100 यूजर एक साथ काम कर सके उस पे. तो वही सेम कंसेप्ट होता है. तो डेवलपर उसको डिफाइन ऐसे ही करते हैं सारी चीजों को कि कोई भी सेम टाइम पे एप्लीकेशन को एक्सेस कर दे तो वो पैरेलल चीजें चल सके उसमें. तो उसके लिए मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट यूज होता है. जैसे आपके सिस्टम में भी मल्टी थ्रेडिंग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि आप एक साथ मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हो. जैसे आप कॉपी भी कर रहे हो कहीं से, फिर कहीं पे डिलीट ऑपरेशंस भी कर रहे हो, कहीं पे गाने भी चला रहे हो, मूवी भी चला रहे हो, मतलब मल्टीपल प्रोग्राम साथ में काम कर रहे हैं. So you can have that example of multi-threading. So simple सा बात है. तो concurrent this package can be used for the multi-threading.
मतलब एक ही क्या मतलब मल्टीपल, हम एक उससे मल्टीपल थ्रेड्स उसको कर सकते हैं उसमें हाँ different- हाँ, तो सीधे सीधे बोल सकते हो मल्टी थ्रेडिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो मतलब अगर एग्जांपल देना है तो यही रहेगा क्या, मल्टी यूजर लॉगिन, या क्या दे सकते हैं एग्जांपल में? मतलब हम सिस्टम के अंदर मल्टीपल चीजें कर सकते हैं पैरेलली, कॉन्करेंटली। ओके सर, ये जावा परसिस्टेंस एपीआई जेपीए, ये मतलब कहाँ, क्या क्या इसका क्या यूज है और कहाँ होता है एपीआई? जेपीए चैप हो गया है तो, जेपीए जावा परसिस्टेंस समझा मैं। एपीआई, जेपीए, जेपी ये तो अलग हो गया शायद। हाँ ये है जावा परसिस्टेंस एपीआई मैनेजिंग। ओके, तो बेसिकली दिस इज द एपीआई, राइट। तो एक एपीआई इनबिल्ट है जावा की क्लास में, जिसका काम क्या होता है कि बेसिकली ये एज ए ब्रिज वर्क करता है जावा ऑब्जेक्ट क्लासेस एंड रिलेशनल डेटाबेस। तो ओके। जैसे जैसे कि तुमने क्लास बनाया और उस क्लास से तुम्हें डेटाबेस को रीड करना है, और डेटाबेस से डेटा रीड करके तुम्हें ऑब्जेक्ट में स्टोर करना है। जैसे हम पोजो क्लास बनाते हैं, हाँ तो हाँ पोजो क्लास में हम मल्टीपल वेरिएबल्स डिफाइन किए, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम उसमें डाटा स्टोर करते हैं। तो ओके। ऐसे डेटा को स्टोर करके हम डेटा को डीबी में इंसर्ट भी कर सकते हैं, और वहां से फेच करके भी डेटा स्टोर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट या क्लास में। तो वो जो मैकेनिज्म होता है वही हमारा यहाँ पे क्या होता है, जावा परसिस्टेंट एपीआई का काम होता है। तो अब इसके अंदर जावा परसिस्टेंट क्वेरी लैंग्वेज यूज होती है, जो ये सब सारे काम करती है, जैसे एग्जांपल दिया है। तो ये सब बेसिकली डेवलपर्स यूज करते हैं सारे कंसेप्ट्स को ना, जनरेट वैल्यू। तो जैसे ये आईडी, नेम, ईमेल, व्हाट एवर द थिंग्स है, तो अगर ये डेटा ले जाके इनको पास करना है तो ये डायरेक्टली कर सकते हैं। टेस्टिंग में इसका इतना यूज नहीं है क्या हमारे लिए? नहीं नहीं है। ये डेवलपर के लिए ही है। हाँ, अगर मान लो तुमने एपीआई से डेटा वेटा तुम खुद इंसर्ट उन्सर्ट कराना चाह रहे हो, यूज करना चाहते हो, तो कर सकते हो। कोड है जावा का बेसिकली, एक्सटेंट लेवल तक यूज करना है तो कर सकते हो। ओके सर, एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं मोस्टली कि सेलेनियम से हम मतलब कौन से ऐसे फीचर या फंक्शन जो ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं? तो वैसे बहुत है, जैसे जो भी वेब ब्राउजर्स पे ओपन नहीं होते हैं ओके। वो सेलेनियम से ऑटोमेट नहीं होगा। तो सेलेनियम की डेफिनेशन है ऑटोमेट्स द ब्राउजर्स ओनली। तो ब्राउजर पे कोई चीज ओपन हो रही है तो वही टेस्ट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी उसी में है, बाकी नहीं है। लेकिन सेलेनियम में और भी चीजें हैं कि ब्राउजर पे जैसे तुम्हारी ओपन हुई, अब जैसे यूट्यूब की वीडियो है, वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है, या कितना कंटेंट चल रहा है, तो वो सब चीजें नहीं टेस्ट कर सकते। या फ्लैश, वो डायरेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसकी लाइब्रेरीज नहीं है, तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करके हमें करना पड़ता है, ए शॉर्ट वगैरह की लाइब्रेरी यूज करके, है ना। तो जैसे बहुत सारी चीजें सेलेनियम इनबिल्ट है ही नहीं, तो हम ऐसी चीजें नहीं कर सकते। तो सर ये सेलेनियम कैप्चा बेसिकली काम करता है जहां बैकग्राउंड में HTML हो। सर कैप्चा भी थर्ड पार्टी से का यूज होता है क्या? मतलब ये भी नहीं हो पाएगा? होता है कौन सा? मुझे कैप्चा कोड जो आता है ना, वो भी शायद सेलेनियम हाँ, से नहीं कैप्चा कैप्चा तो कोई सेलेनियम ही नहीं, कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कैप्चा लगाया ही एप्लीकेशन में जाता है कि ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट ना रन हो। नहीं तो अच्छा। अभी, हाँ, नहीं तो अगर मान लो कैप्चा ना लगाया जाए, मान लो कि एग्जांपल लो, तो हम्म मैं रात भर में किसी का एक लॉग रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करूं और हम्म करोड़ों डेटा बल्क में अपलोड मार दूं, हम्म करोड़ों डेटा क्रिएट कर सकता हो कि नहीं, जैसे खुन्नस में आके, तो प्रोडक्शन डेटा उसका खराब हो जाएगा ना। तो वो तो राइट। सोचेगा ना कि रोके इसको हम कैसे भी। तो इसीलिए कैप्चा लगाया जाता है कि प्रोडक्शन पे ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट ना रन। और लोअर इन्वायरमेंट में हम क्या करते हैं, कैप्चा को डिसेबल करवा देते हैं कि जिससे हमारी टेस्टिंग हो जाए, प्रोडक्शन पे फिर से इनेबल करा दो। और ओके। दूसरी चीज है कि कभी कभी कुछ कैप्चा ऐसे होते हैं कि जिसमें हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया, गेट टेक्स्ट किया, उसका टेक्स्ट आ गया, डाल सकते हैं, अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब हो सकता है चलें ये मतलब। अच्छा, फुल फॉर्म ऑफ कैप्चा, वाह नाइस।
completely automated public Turing tests to tell computer and human apart. मतलब एक तरीके से यही ऑटोमेशन को रोकना ही है, हाँ इससे नहीं यूज होता है। completely automated। कैप्चा ही ठीक था। ठीक था। हाँ, फ्लैकी टेस्ट वो होता है कि जो टेस्ट आपके फालतू में फेल होते हैं, उसको बोलते हैं फ्लैकी टेस्ट। मतलब आपने 1000 टेस्ट केस ऑटोमेट किया, अब उसमें से रन कर रहे हो 50-100 अनायास फेल हो जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लैकी टेस्ट। तो उसमें कहीं ना में भी डेटा की वजह से फेल हो गए, या लोकेटर्स की वजह या सिंक्रोनाइजेशन की वजह से फेल हो गए, जिसको फिक्स किया जा सकता है, तो वो स्टेबल नहीं है मतलब एक तरीके से। तो फ्लैकी टेस्ट ऑटोमेशन में 10 से 15% रहते ही है अगर बड़ा सूट है तो इसको रिजॉल्व करने का मतलब हमें स्टेबल करना पड़ेगा उसको 1 by 1, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा प्रॉपर डेटा की। तो हमें समझना पड़ेगा कि डेटा का प्रॉब्लम है कि एक्सपाथ का प्रॉब्लम हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, कि या सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो डेटा मेनली ये तीन ही वजह होती है, राइट? तो तीनों को हमें प्रॉपर करना पड़ेगा, प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन स्टेट्स, क्यों ऐसा हो रहा है, राइट? डेटा प्रॉब्लम है तो डेटा रन टाइम पे बनाओ, ऐसा कर सकते हो। लोकेटर बार बार चेंज हो रहा है तो उसको लोकेटर स्ट्रेटजी फिक्स करो उसका। तो फ्लैकी टेस्ट का मतलब फॉल्स टेस्ट, कि भाई 100 टेस्ट केस रन किया, अलग अलग रन करते हो सब सही चलता है, 100 इकट्ठा मारते हो तो 10 फेल हो जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लैकी टेस्ट। तो मोस्टली प्रॉब्लम सिंक्रोनाइजेशन की वजह से ही होता है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है उसमें प्लेराइट में। फ्लैकी टेस्ट बहुत कम होते हैं उधर, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन वो ऑटो हैंडल करता है। तुम सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे तुम हैंडल करते हो, तो जब इंसान कोई काम करेगा तो गलती हो सकती है ना। अब हर जगह तुमने थ्रेड डॉट स्लिप ठोक के रखा हुआ है, तो 1 सेकंड भी मिस हुआ तो गया ना वो। तो पर्टिकुलर कंडीशन बेस्ड वेब ड्राइवर वेट आपको एक्सप्लिसिट वेट लगानी पड़ेगी प्रॉपरली। और जितने भी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट बेस्ड एप्लीकेशन आते हैं कभी कभी नहीं करते, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए इन्हीं चीज, सेलेनियम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है जानते हो? सबसे बड़ा ड्रॉबैक सेलेनियम में वेट का। और हर एक ऑटोमेशन टूल में वेट अगर हैंडल प्रॉपर नहीं हुआ तो फटेंगे आपकी चीजें, क्योंकि तुम एप्लीकेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते स्लोनेस होने से, राइट? तो इंटरनल वो एपीआई कॉल करेगा, एपीआई का रिस्पांस आया कि नहीं आया, वो कितने तरीके से एपीआई कॉल कर रहा है, कि एजाक्स कर रहा है, कि जे क्वेरी चला रहा है, क्या क्या चीजें कर रहा है वो फ्रंट एंड पे, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज कर रहा है। तो वो कैसे उसको बना रहा है, यूआई को रन टाइम पे डायनेमिकली जनरेट करना है, उसके पीछे सीएसएस भी चल रही है। तो तुम हर चीज को कैसे हैंडल करोगे? या तो तुम बहुत स्मार्ट रहो कोड लिखने में, प्रॉपर वेट को हैंडल करो। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बहुत एक्सपर्टीज चाहिए। बट साइप्रेस वगैरह हो गया, जो प्ले राइट हो गया, ये डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट से इंटरेक्ट करते हैं, और उनके अंदर वो वेट मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली लगा रखा है कि इंटरनल जब तक वो रिलोड होके एपीआई चल रही है चुपचाप बैठेगा, जब वो प्रॉपर रिलोड स्टेट में आ जाएंगी तब वो एक्शन करेगा। तो वो चीजें क्या हो गई? ऑटो हैंडल्ड हो गई। तो ऑटो हैंडल ये चीज होगी तो बड़ा काम है ना ये, फ्लैकी टेस्ट को रिमूव करना। तो फ्लैकी टेस्ट, क्योंकि डेटा तुम हैंडल कर सकते हो, तुम्हारे कंट्रोल में डेटा सही पास कर दिया, एक्स पाथ तुमने एक बार फिक्स कर दिया, हो गया। लेकिन सिंक्रोनाइजेशन कैसे बार बार करोगे? तुम्हें तो वो समझ में ही नहीं आ रहा है ना, कभी 1 सेकंड, कभी 2 सेकंड, कभी 4 सेकंड, कभी 5 सेकंड, कभी 10 सेकंड। तो उसकी वजह से सबसे ज्यादा फ्लैकी टेस्ट या फॉल्स फेलियर्स होते हैं। तो जो कि दूसरे टूल्स में प्ले राइट वगैरह में इनबिल्ट मैकेनिज्म है इन सब चीजों को हैंडल करना। सर तो इसके लिए जैसे मतलब मिनिमम 2 सेकंड लग रहे हैं, 3 सेकंड, तो हम थोड़ा वेट टाइम अगर 5-10 सेकंड डाल दिया, जिससे ज़्यादा लग नहीं सकता है, मतलब अप्रॉक्स वैसे कर सकते हैं ना वेट टाइम? नहीं नहीं, अगर ऐसे करते हो तो प्रैक्टिकली ऐसा कर सकते हो अपनी खुशी के लिए, लेकिन इंटरव्यू में आपको नहीं बताना है। क्योंकि होगा क्या कि अगर 10 सेकंड तुमने मैक्सिमम टाइम लगा दिया, एलिमेंट एक ही सेकंड में मिल रहा है, तब भी जबरदस्ती 9 सेकंड वेट कर रहा है, तो जो पूरा टेस्ट केस 100 टेस्ट केस एग्जीक्यूट 4 घंटे में होने थे वो तुमने 8 घंटे में कर रहे हो। डजंट मैटर ना, हमें टाइम बचाना है। तो फीचर क्या है? तो थ्रेड डॉट स्लीप की जगह हमेशा एक्सप्लिसिट वेट यूज करना है, वेब ड्राइवर वेट बेस्ड ऑन कंडीशंस। तो वो डायनेमिक है, 1 सेकंड में मिलेगा तो 1 सेकंड में जाएगा, नहीं तो तुम मैक्सिमम टाइम पास करके 30 तक रख लो। ठीक है? ओके।
और सर एक और चीज था कि ये जो वेब ड्राइवर एपीआईज है तो सेलेनियम में कौन कौन से अवेलेबल है, ये जैसे एंड्रॉइड ड्राइवर और ये सब होता है। हाँ, तो वेब ड्राइवर जो होता है ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ड्राइवर्स को सपोर्ट करता है। तो जैसे एंड्रॉयड ड्राइवर हो गया, आईओएस ड्राइवर हो गया, ये रिमोट वेब ड्राइवर हो गया, ये सारी चीजें भी अलग अलग है, सिलेनियम के पार्ट में आते हैं। तो जैसे एंड्रॉयड ड्राइवर, आईओएस ड्राइवर, ये सब मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए हो गई। रिमोट वेब ड्राइवर ग्रिड के लिए यूज हुआ, रिमोट मशीन को एक्सेस करने के लिए, राइट। तो ऐसे अलग अलग ड्राइवर्स हैं और ये ड्राइवर एक दूसरे से रिलेटेड है। तो वेब ड्राइवर का आर्किटेक्चर देखोगे तब समझ में आएगा। ओके। नो, सो एक बैकग्राउंड कीवर्ड विल वर्क फॉर ओनली दैट फीचर फाइल, दूसरे फीचर फाइल के लिए वो काम नहीं करेगा। तो हर एक फीचर फाइल के लिए बैकग्राउंड होना चाहिए। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में हम फंक्शनल टेस्टिंग कर सकते हैं क्या बाय यूजिंग ऑटोमेशन? यस, रुको 1 बाय बनाते हैं तुम्हारे क्वेश्चन पे, इस बाद में। पहले तुम क्या पूछ रहे थे? राइट। सो सबसे पहले रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है स्पेशली इन ऑटोमेशन में कि ऑन डेली बेसिस वी आर ऑटोमेटिंग द टेस्ट केस व्हाटएवर द बैकलॉग वी हैव। So right now we have, suppose example, we have around 650 test cases overall in regression pack, and after every release, functional team is adding more and more, right? After every release, functional team is adding more and more test cases into the regression pack, and we are responsible for automating regression pack first. So till now we have suppose 650 test cases total, but we have automated around 380. So we have a approximate 250 backlog. So our job is day to day. We have to automate those scripts, right? And then during the automation, since we are working in a team, so we have divided the models within a team. So everybody is doing the automation, right? And after automation, so suppose everybody has to, so there is a review process, right? How we are reviewing it. So since I'm a senior person, right? So everybody has to automate their script, right? And then they have to execute once at their local machine, and they have to attach the evidences, like this has been executed successfully on their machines. Then they will raise the merge request because they are working in their respective branch. Then they will raise the merge request. So as a senior person, I can go into the Git, I can see it while merging, I can see their scripts and I can review it. Now there could be the question again, what are the checklist you are following as a part of reviewing the code? The code review checklist. तो क्या चेक कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन बनाया तो फंक्शन के ऊपर प्रॉपर कमेंट डाला गया कि नहीं, कि ये फंक्शन किसने लिखा, कब लिखा, इस फंक्शन का पर्पज क्या है। पहली चीज, फंक्शन के अंदर कोई चीज हार्ड कोडेड तो नहीं है, वेरिएबल प्रॉपरली नेमिंग कन्वेंशन यूज किया गया है ना, और फंक्शन प्रॉपरली लिखा गया है कि कोई हार्ड कोडेड वैल्यू के साथ नहीं है। दिस कुड बी द वन थिंग, राइट? एंड पर्टिकुलर फंक्शन हैज बीन रिटन इन राइट क्लास और नॉट, कि जैसे यूटिलिटी क्लास है तो उसमें सारी यूटिलिटीज लिखना चाहिए, कि ये नहीं कि उसने क्या किया कि पेजेस में ही सारे फंक्शंस लिखे जा रहे हैं। तो पेजेस का कंसेप्ट क्या है कि फंक्शनैलिटी रिलेटेड चीजें वहां पे लिखना है, लेकिन यूटिलिटी रिलेटेड फंक्शन यूटिलिटी क्लास में होनी चाहिए। तो आर दे राइटिंग द फंक्शन इन राइट प्लेस और नॉट, राइट? आर दे यूजिंग राइट लॉजिक और नॉट? कैन दैट फंक्शन बी रीयूजेबल इन अदर वेज, अदर कैन यूज इट और नॉट? सो एवरीथिंग। सो अगर मान लो उसने एक क्लास में उसको प्राइवेट बना के छोड़ दिया तब भी गलत है ना, तो वो रियूजेबल होना चाहिए, प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन होना चाहिए, कमेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम ऐसे चीजें देखते हैं, और फिर हमें ये भी देखना पड़ता है कि कहीं वो फंक्शन डुप्लीकेट तो नहीं है, कि कोई और तो बना के भी नहीं रखा है, तो हमें वो चीजें भी देखनी पड़ती है ना। या फिर थोड़े से चेंजेस के लिए उसने नया फंक्शन लिख दिया, तो क्या पता एग्जिस्टिंग फंक्शंस को मॉडिफाई करके भी हम इसको यूज किया जा सकता था। So this could be the things. If I will have any doubt, I can set up the call with the team and I can discuss with it and then finalize it. What could be the our approach?
ठीक है, देन वी हैव डिफाइंड द प्रोसेस देयर, डेफिनेशन ऑफ डन, कि कोई भी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट कैसे पता चलेगा कि तुमने डिलीवर कर दिया, तुम्हारे एंड से कंप्लीट हो गया। तो उसके लिए पर्पस क्या है कि फ्रेमवर्क में पहले हम टेस्ट केस को ऑटोमेट करेंगे, डेटा पार्ट डायनेमिक होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट केस ऐसा होना चाहिए। डेफिनेशन ऑफ डन में चेकलिस्ट हमारी क्या है कि डेटा डायनेमिक होना चाहिए, प्रॉपर फंक्शंस लिखे होने चाहिए, फंक्शंस हार्ड कोडेड कुछ नहीं होना चाहिए, राइट। दैट टेस्ट केस कैन बी एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स बेस्ड ऑन डिफरेंट डेटा सेट्स, राइट। इसके बाद वो कोड प्रॉपर चेक इन होना चाहिए, किट में मास्टर में मर्ज होना चाहिए, और डेली बेसिस पे पाइपलाइन में एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें प्रोसेस हुई और वो डिफरेंट इन्वायरमेंट पे और डिफरेंट मतलब डिफरेंट इन इवन इन्वायरमेंट पे भी काम कर रहा है, तुमने सारी चीजें डायनेमिकली हैंडल कर रखा है, देन इट कुड बी द डेफिनेशन ऑफ डन, कि आपने पर्टिकुलर जो ऑटोमेशन टेस्ट केस ऑटोमेट किया वो करेक्ट है। ऐसा नहीं कि ये तुमने ऑटोमेट किया, तुम्हारे मशीन पे चल गया, गिट में गया फट गया, पाइपलाइन में फट गया, दूसरे इन्वायरमेंट में नहीं चल रहा है, तो ये तो रिवर्क हो गया ना फिर से। तो सबका अपना डेफिनेशन ऑफ डन होता है, तो हमारा डेफिनेशन ऑफ डन ये है कि वो सीटी में भी चलना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट पे भी टेस्टिंग करके देना है। दूसरा क्रॉस ब्राउजर भी होना चाहिए, कि वही सेम स्क्रिप्ट्स उसके डिफरेंट ब्राउजर्स पे भी चलने चाहिए, तभी तो पता चलेगा एक्सपर्ट सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम डिफरेंट ब्राउजर पे भी टेस्ट करते हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट पे भी टेस्ट करते हैं, जैसे यूएटी क्यूए में भी टेफ, ठीक है। फिर गिट में चेक इन करके पाइपलाइन में भी चलाते हैं, ओवरनाइट एग्जीक्यूशन भी होता है 2-3 राउंड, और वो कंटिन्यूअस टेस्टिंग मोड में चलता रहता है, तो उससे हम स्क्रिप्ट को स्टेबल करते हैं। कंटिन्यूअस टेस्टिंग हमने क्यों इंप्लीमेंट किया कि कंटिन्यूअस एप्लीकेशन की टेस्टिंग हो रही है, और आपका ये जो फ्लाई की टेस्ट वाला कंसेप्ट आ गया वहीं पे फटता है कि 100 डेली रन हो रहे हैं, आज 80 पास हुआ यार, कल 90 पास हुआ, परसों 60 पास हुआ, तो वहीं से पता चल गया क्यों फट रहा है भाई, तो किसका टेस्ट केस है, किसने ऑटोमेट किया है, चेक करो अपना अपना, फटना नहीं चाहिए। तो अपना एनालिसिस करो, फाइंड आउट करो, इश्यूज फिक्स करो, फिर से फटा फिर पकड़ेंगे दूसरे दिन क्यों नहीं फिक्स हो रहा है, प्रॉब्लम डिस्कस करो, समझ गए। तो इसलिए सिटी इज इंपॉर्टेंट। नहीं तो तुमने ऑटोमेशन का सूट बना दिया, डेफिनेशन ऑफ डन सब ऑटोमेटेड है, रिलीज आई चल ही नहीं रहा। अब क्या हुआ रिलीज, अरे एक्सपांस सब चेंज, अबे चेंज हो गया तो क्यों चेंज हुआ, तुमने क्यों नहीं ये सब हैंडल करके रखा, किस बात की ऑटोमेशन है फिर, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन बनाओ ना इसको, धक्का देके ही चलाना है, तो तुम क्यों बैठे हो, फिर फंक्शनल टीम नहीं कर लेगी, उससे फास्ट करेगी। ऑटोमेशन का पर्पस सॉल्व होना चाहिए। गो अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन। या ईशा तुम कुछ पूछ रही थी, दीपक ही ईशा थी, ठीक है मैंने पूछा लिया था। जो भी थी पूछो, आवाज दोनों की एक ही जैसी आ रही है इसलिए। ऑटोमेशन हम ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में कर सकते का फंक्शनल टेस्टिंग, यस यस, अब बात ये हाउ इज आती इट है, पॉसिबल? अब हाउ इज इट पॉसिबल, लेट्स सी, आई कैन एक्सप्लेन। तो यहाँ पे लेवल ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए होता है। ऑटोमेशन का मेन पर्पस ये होता है कि जब तक एप्लीकेशन स्टेबल नहीं हो गया तब तक तुम ऑटोमेट कैसे करोगे। अब मान लो कि करंट स्प्रिंट चल रही है, तो करंट स्प्रिंट पे भी वो डेवलप हो रहा है, तो तुम ऑटोमेशन कैसे करोगे जब तक तुम्हारे पास यूआई ही नहीं है, पहला क्वेश्चन। जब तक यूआई नहीं है तब तक तुम ऑटोमेशन कर नहीं पाओगे। तो एक तरीके से बात तो सही है कि ऑटोमेशन नहीं हो हाँ सकता। हाँ, तो कुछ लोग तो ये बोलेंगे, लेकिन मैं बोलता हूं, अब ये मेरा लेवल ऑफ एक्सपर्टीज है कि तब भी मैं ऑटोमेशन कर सकता हूं। क्योंकि अब पूछो क्यूए कैसे। पे माइग्रेट करके डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अलग करके नहीं, ऐसे। बिना ओके, एनवायरमेंट, मान लो अभी डेवलपर ने एप्लीकेशन का पेज ओपन ही नहीं किया, जैसे फॉर एग्जांपल है, हाँ मान लो हाँ एक टीम में डेवलप, एक स्प्रिंट में डेवलपर भी काम कर रहे हैं, टेस्टर भी काम कर रहे हैं। अभी जब डेवलपर डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो टेस्टर क्या करता है, टेस्ट केस किस लिखता लिखते हैं? है कि नहीं, उसको यस, फंक्शनैलिटी पता होता है कि नहीं। तो फंक्शनैलिटी पता हो कि अगर तुम टेस्ट केस लिख सकते हो, तो ऑटोमेशन टेस्टर उस समय क्या करेगा, वही जो तुम लिख रहे हो उससे करके नहीं लिख सकता, करके लिख लिख सकते हैं। के स्टेप डेफिनेशन लिख सकता है, फंक्शन बना सकता है, हर काम करेगा, सिर्फ क्या नहीं लिखेगा, लोकेटर, लोकेटर की जगह डमी लोकेटर डाल देगा, स्क्रिप्ट रेडी, जैसे ही एप्लीकेशन आया सिर्फ लोकेटर चेंज करेंगे, रन कर देंगे, तो 90% ऑटोमेशन तो कर दिया ना तुम। तो यस, इसको बोलते हैं इन स्प्रिंट ऑटोमेशन। क्या हम करंट स्प्रिंट में, तो कहीं कहीं पे होता है कि हम स्प्रिंट -1 चलते हैं,
कि एक स्प्रिंट डेवलप पीछे चलता है ऑटोमेशन, क्योंकि जब तक वो स्टेबल हो गया, प्रोडक्ट आ गया रिलीज, डेटा मतलब साइट लाइव है, हम उस पर ऑटोमेशन कर रहे हैं, अगला भी डेवलपमेंट में है, तो स्प्रिंट -1 एक तो कुछ कंपनी में ऐसा चलता है, और जो ज्यादा एडवांस है वो इन स्प्रिंट ऑटोमेशन करते हैं। वो क्या करेंगे कि साथ के साथ, मतलब मैनुअल टेस्टर क्यों टेस्ट केस लिखेगा, तुझे टेस्ट केस नहीं लिखना, तू डायरेक्ट गरकिन लिख, डायरेक्ट ऑटोमेट करना उसको, तुम अपने टेस्ट केसेस को डायरेक्ट ऑटोमेट करो भाई, फंक्शनल टेस्टिंग का कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे, तुम जो टेस्ट केस लिख रहे हो उसी को डायरेक्ट ऑटोमेट करो, सेम टाइम पे रन करो, एप्लीकेशन है लोकेटर से रन करो, पास तो पास, फेल तो फेल। तो इसको बोलते हैं इन स्प्रिंट ऑटोमेशन, वो भी फंक्शनल टेस्टिंग नहीं, डायरेक्ट ऑटोमेशन, क्योंकि वही टेस्ट केस तुम एग्जीक्यूट करने वाले हो जो टेस्ट केस तुम उधर लिख रहे हो। तो तुम अब 2 बार टेस्ट केस लिखोगे, एक बार थियरी लिखा कहानी, फिर उसको गरकिन में क्यों बनाया, तो गरकिन में क्यों बनाया भाई, तो वहां टीडीडी अप्रोच यूज करता, हम बीडीडी क्यों कर रहे हैं, तो बिहेवियर ड्रिवन जब डेवलपमेंट अप्रोच हम यूज कर रहे हैं, तो गरकिन में भी तो वही प्रॉपर लिख रहे हैं ना स्टेप से, तो तू अलग से स्टेप कहानी क्यों बना रहा है भाई, तो ये एजुकेट क्योंकि करना पड़ता है। टीडीडी में डेटा रहता है और सब चीजें डिफरेंट रहती है, इसके वजह से हम बीडीडी यूज करते हैं कि बिहेवियर को। ओके, तो इसलिए इन स्प्रिंट ऑटोमेशन हम कर सकते हैं और ऐसे करते हैं, नेक्स्ट लेवल ऑटोमेशन है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। और इन केस डॉक्यूमेंट बने नहीं होंगे तो उसके हिसाब से कैसे हम वो फीचर्स फाइल क्रिएट तो करेंगे? अब वो तो तुम सोचो, टेस्टर हो तुम, जब तुम्हें हाँ, रिक्वायरमेंट ही नहीं पता तो तुम मैनुअल टेस्टर क्या करेगा उस टाइम, ऑटोमेशन के तो बाद में हम करेंगे। अगर ओके, रिक्वायरमेंट ही तुम्हें नहीं पता तो मैनुअल टेस्टर भी तो कुछ नहीं कर पाएगा, सिंपल हाँ लॉजिक कर है ये। तो तुम पहले जाके मीटिंग सेटअप करो, फंक्शनलिटी अंडरस्टैंड करो साथ के साथ, फिर डेवलपर कहाँ से करेगा, डेवलपर को भी तो कुछ नहीं पता होगा, तो इसलिए एक ही मीटिंग में स्प्रिंट की मीटिंग जो होती है, कौन से स्टैंड अप नहीं होता वो, उसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंट प्लानिंग। planning। स्प्रिंट प्लानिंग के बाद एक दूसरी मीटिंग होती है ना, कौन सी, जिसमें बीए ओवरव्यू देता है, वॉक थ्रू कॉल होता है सर। वॉक थ्रू कॉल होता है जिसमें बीए फंक्शनलिटी एक्सप्लेन करता है किसको, टेस्टर और डेवलपर को, तो डेवलपर वही समझ के तो डेवलप करेगा, टेस्टर वही समझ के अपना टेस्ट स्क्रिप्ट डेवलप करेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग रहता है वहां पे। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जो भी कर लो, तो उसी यस, में तो डिसीजन होता है। तो अगर जब तुम्हें भी नहीं पता तो डेवलपर को भी नहीं पता होगा, तो मतलब दोनों बैठे हो, तो जब वो तो स्प्रिंट ही कहाँ चल रहा है, तो उसका मतलब तो बीए का ही प्रॉब्लम हो गया, प्रोडक्ट ओनर स्क्रम मास्टर समझे, फिर रिलीज स्टार्ट ही नहीं हुई। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्लोजर रिपोर्ट अब कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, अब जैसे ये तो डिफरेंट आपके टेस्ट प्लान में भी हो सकता है, टेस्ट स्ट्रेटजी भी अलग हो सकती है, राइट। तो क्लोजर रिपोर्ट सिंपली होता है कि तुमने किसी रिलीज को साइन ऑफ किया, तो क्या किया, कैसे साइन ऑफ दे रहे हो, साइन ऑफ का एक फॉर्मेट होता है कि हमने ये सेट ऑफ टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट किए, यहाँ पे सारे एविडेंसेस हमने रखे हैं, ये डिफेक्ट थे, ये डिफेक्ट के सारे स्टेटस हैं, ये सारी चीजें। तो क्लोजर रिपोर्ट का मतलब साइन ऑफ करना, तो साइन ऑफ जो होता है वो क्लोजर रिपोर्ट ही एक तरीके से होता है। तो क्लोजर रिपोर्ट का एक टेम्पलेट होता है कि क्या क्या चीजें हम बता रहे हैं, कि किसके बिहाफ पे हम बोल रहे हैं कि हम कंडीशनल साइन ऑफ दे रहे हैं, गो नो गो जो मीटिंग होती है उसमें डिसीजन यही होता है ना तुम्हारे क्लोजर रिपोर्ट पे, कि जाएगा कि नहीं जाएगा, तो क्या क्या फैक्टर्स है उसके अंदर। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई मेजर डिफेक्ट की वजह से प्रोडक्शन पे नहीं जा रहा है कोड, तो क्यूए क्या करेगा अब, तो क्यूए रोक सकता है कि नहीं। अब कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया कि मान लो आज लास्ट डेट थी, तुम्हें आज डिफेक्ट मिल गया, वो भी मेजर डिफेक्ट, अब तुम बताओ साइन ऑफ दोगे कि नहीं दोगे, तो दोगे कि नहीं दोगे, वो डिफेक्ट भेजोगे प्रोडक्शन पे, और रिलीज रोक भी नहीं सकते, तो बहुत पैसा लगता है एक रिलीज में। तो फिर वहां पे आता है गो नो गो मीटिंग होती है, तो उसमें अपने ऊपर सब नहीं लेने का, हम टेस्टिंग में हैं, हम अपना काम करेंगे कि सॉफ्टवेयर देखो भाई टेस्ट किया, ये मेजर डिफेक्ट है, डेवलपर भी एग्री करता है, डेवलपमेंट मैनेजर, बीए, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर सब लोग हैं, अब डिसाइड करो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अगर हम साइन ऑफ देंगे एज ए टेस्टर तो कंडीशनल साइन ऑफ देंगे, कि इसका रिस्क ये है, अगर कंपनी इसको बियर करने को तैयार है तो एज ए टीम
तो ये डिसीजन लेना सबसे मुश्किल काम होता है रिलीज मैनेजर के लिए, कि जाएगा कि नहीं जाएगा। तो उसमें बहुत सारे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है कि डिफेक्ट कितना इम्पैक्ट कर रहा है, और ये डिफेक्ट फिक्स करने में कितना टाइम लग सकता है। कि हो सकता है कि हम अभी प्रोडक्शन पे भेजें, बट क्या पता हम 2 दिन में हॉट फिक्स रिलीज लाके इसको तुरंत कवर कर सकते हैं। तो वो फिजिबल है कि फिर से अगर इसको डिफर्ड करके अगले स्प्रिंट में करेंगे तो 15 दिन में कितना इम्पैक्ट उसका बढ़ सकता है क्लाइंट पे। तो नेचर ऑफ डिफेक्ट हो सकता है, तो वो रिस्क तुम कैलकुलेट करोगे क्योंकि तुमने मिला है, राइट। तो तुम अपना अपना सब कंडीशन देंगे, फिर एक कोलैबोरेटिवली रिलीज मैनेजर डिसीजन लेगा कि एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू गो, जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन तुम तो कंडीशनल साइन ऑफ दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Will Tosca replace Selenium or Cucumber frameworks? दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। टोस्का क्या सेलेनियम को रिप्लेस कर पाएगा? बात तो अच्छी बात है। Yes. तो मैं भी चलो एक बात करता हूँ, क्या मर्सिडीज स्विफ्ट डिजायर को रिप्लेस कर देगा? सो व्हाट्स योर नहीं। आंसर? नहीं ना, तो सेम No. है, सेम आंसर है। Okay. क्योंकि रॉयल्स राइस क्या मर्सिडीज को रिप्लेस कर पाएगा? देखो सबका अपना एक काम होता है, एक दायरा होता है, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए सेलेनियम पॉपुलर क्यों है? क्योंकि एक पहले चीज तो फ्री है ना, ओपन सोर्स है, पैसा नहीं लग रहा है, और टूल्स का पेड टूल है, लाइसेंस कॉस्ट है उसका। Okay. एक साल में एक लाइसेंस की कीमत 3 से 4 लाख रुपए लेता है टोस का, एक यूजर के लिए। ठीक है, वो पैसे ले रहा है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि टोस का पेड टूल है, पैसा ले रहा है, लेकिन अगर वही काम जो टोस का कर रहा है अगर हम सेलेनियम से कर सकते हैं इजिली, तो हम टोस का क्यों यूज करेंगे? सिंपल सी But बात है। easy तो Tosca है ना, क्योंकि many people don't know नहीं the नहीं, language. इजी नहीं, इजी वाली बात नहीं है। अब वो देखो मल्टीपल फैक्टर वहां पे इन्वॉल्व होता है। Okay. तो जैसे मर्सिडीज से अगर तुम डिजायर को कंपेयर करोगे, तो वहां पे भी तो तुम्हारे पास फैक्टर्स हैं। चलो मर्सिडीज महंगी क्यों है? पहली चीज तो भाई सेफ्टी ज्यादा हाँ. होगा, लेकिन Yes. मेंटेनेंस भी ज्यादा है, कॉस्ट भी ज्यादा है। लेकिन चलो डिजायर इतना भी कम सेफ्टी नहीं है, राइट। लेकिन कंपेयर टू दैट बहुत ज्यादा लो कॉस्ट है। तो अगर Affordable. तुम Yes. टोस्का से कर रहे हो, जैसे सिंपल सा टोस्का का लाइसेंस लिया, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी टेस्टर हैं, टोस्का Yes. सीखना आसान है, टोस्का में काम करना आसान है, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जिससे तुम टोस्का पे काम करवा रहे हो, राइट, उसके भी रिसोर्स मिनिमम है मार्केट में। तो अगर कम Yes. रिसोर्स होंगे तो कॉस्ट ज्यादा होगी। तो अगर तुमने 3 साल के एक्सपीरियंस को टोस्का वाले डेवलपर को हायर किया, टेस्टर को, उसको 10 लाख रुपए दे रहे हो, अगर 6 लाख में तुम्हें सेलेनियम का एक्सपर्ट बंदा मार्केट में मिल रहा है, तो सेलेनियम वाला ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो कोड लिख के सेलेनियम में भी काम कर सकता है, टोस्का पे तो कोई भी काम कर सकता है, क्योंकि वो यूआई है उसके अंदर। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, यूआई अच्छा है, ऑप्शन खोज खोज के बंदा खुद कर ले जाता है, तो वैसे वो भी है यूआई। तो उसके अंदर यूआई है, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, रिकॉर्ड करो, टेस्ट जनरेट हो गया। अभी जैसे हम टेस्ट आईडी से रिकॉर्ड कर लिए थे, तो टेस्ट जनरेट हो रहा था, उसको माइग्रेट कर लेते थे, काम खत्म। तो वही था उसका। लेकिन जो बंदा कोडिंग में जाके एक्सटेंट लेवल तक काम कर सकता है सेलेनियम में, वो तो टोस्का पे इजिली काम कर सकता है ना। तो सेलेनियम में सीखने के लिए टोस्का वाले बंदे को सेलेनियम सीखना के लिए 4 महीने लगेंगे, लेकिन जिसको ऑलरेडी सेलेनियम पता है वो 1 हफ्ते में टोस्का में काम कर सकता है। तो व्हाट कुड बी द बेटर? और मार्केट में रिसोर्स सस्ते किसके हैं? सेलेनियम के। भरे भरे रिसोर्स किसके हैं? सेलेनियम के। कल के डेट में रिप्लेस करना है तो सेलेनियम का बंदा मिलेगा, ओपन सोर्स है, फ्री है। सिर्फ बात अब यहाँ पे क्या आ रही है कि टोस्का में टेस्ट जनरेट जल्दी हो रहा है, कि सेलेनियम में मान लो तुम्हें कोड ज्यादा लिखना पड़ रहा है, तो 10 टेस्ट केस तुम हो सकता है वहां 2 दिन में करो, ये 1 दिन में करो, दैट कुड बी द थिंग। लेकिन ओवरऑल कॉस्टिंग भी तो निकालो। Fresher इसका also replace तो the experienced person, na? क्या? If fresher know the Selenium, then he also replace the experienced यस, person तो position. तो रिप्लेस तो कोई भी किसी को कर सकता है। देखो सिंपल सी बात थी, एक टाइम Okay. था, मैं बात 2010 की बताता हूँ। सबसे पहले ऑटोमेशन टूल था विन रनर जो मार्केट में छाया हुआ था, उसके बाद आया क्यूटीपी।
QTP हर टाइप का ऑटोमेशन करता था, चाहे वो वेब हो, विंडोज हो, पहले विंडोज एप्लीकेशन ऐप, मेन फ्रेम, ये सब होते थे। तो QTP जो था सबकी ऑटोमेशन करता था और बादशाह टूल था। फिर 2007 से सेलेनियम छोटा सा आया और 11 तक आते आते, 11 नहीं 8-9 तक आते आते पॉपुलरिटी बढ़ती गई। फिर क्वेश्चन आया, क्या सेलेनियम QTP को रिप्लेस कर देगा? ठीक है, तो बात आई नहीं। क्यों? रीजन, क्योंकि सेलेनियम सिर्फ ब्राउजर को ऑटोमेट करेगा, बाकी अदर एप्लीकेशंस को तो नहीं कर सकता ना। तो ऐसा हो सकता है कि वेब को रिप्लेस करेगा, लेकिन QTP कंप्लीटली नहीं होगा। लेकिन हो गया रिप्लेस। क्यों? क्योंकि सारे एप्लीकेशन जो विंडो बेस्ड थे अब सब वेब पे आ गए, अब सब क्लाउड पे आ रहे हैं, सब इंटरनेट पे आ गए। विंडो बेस्ड कुछ बचा ही नहीं। हर एप्लीकेशन ऐप से लेके मेन फ्रेम तक सब जब वेब पे आ रहा है, तो वेब तो सेलेनियम करेगा। तो आज का टाइम गया UFT मार्केट से। इतने बड़ा टूल था, बहुत कोशिश किया उसने अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन सेलेनियम खा गया उसको। अब जिनकी पुरानी स्क्रिप्ट है, बनी बनाई है और पुराना प्रोडक्ट है, ऑटोमेशन बना है, वो जिंदा है। अब वो जब तक वेब पे जाएगा नहीं, सेलेनियम चाहिए नहीं, तो उनको तो यूज करना ही पड़ेगा वो। तो वो अभी है जहां जहां है, लेकिन नया जितना ऑटोमेशन होता है वेब पे है या मोबाइल पे है, कोई मतलब नहीं, सेलेनियम कैपेबल है। अब ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट है कि क्या प्ले राइट सेलेनियम को रिप्लेस करेगा कि नहीं? दैट इज अ बेस्ट क्वेश्चन। तो यस, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग जितनी है अभी तक, यस, सेलेनियम को रिप्लेस अगले 5 साल में प्ले राइट कर देगा, अगर सेलेनियम ने प्ले राइट को कंपीट नहीं किया। सेलेनियम ने वही सारी चीजें जो प्ले राइट कर रहा है, अगर वो फीचर इसने अपने अंदर रख लिया कि जैसे स्क्रिप्ट लिखो रिपोर्ट पे जनरेट करे, जैसे प्ले राइट करता है, तो मैं रिपोर्ट के लिए अलग इंटीग्रेशन करना पड़ता है, लोकेटर्स, डायनेमिकली सिंक्रोनाइजेशन, ये सब जो चैलेंजेस है सेलेनियम में, वो जो प्ले राइट ने क्या किया, सेलेनियम को ऑब्जर्व किया, इसके कोड चैलेंजेस को देखा, ऑप्टिमाइजेशन किया। सेलेनियम के चैलेंजेस को देख के उसी हिसाब से टूल निकाल दिया। और माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्ट है उसका, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है तो पावर है उसके पास, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, तो वो चालू हो गया। तो अभी जो है प्ले राइट ने क्या किया, साइप्रस की मार्केट खत्म की पहले। तो साइप्रस जब आया तब वो सेलेनियम की लेने में लगा था। साइप्रस ओनली सपोर्ट जावास्क्रिप्ट और प्लेराइट ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं ऑल है। लैंग्वेजेस। हाँ, लैंग्वेज की बात करें तो साइप्रस जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट दो ओनली। लैंग्वेज में काम करता है। यस। लेकिन हाँ। प्ले राइट जब आया तो सेलेनियम की कॉपी लेके आया यस। कि जितनी लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है उतनी लैंग्वेज को वो भी, उसमें भी जावा, पाइथन, सब जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट सब में काम कर सकते हो प्ले राइट में भी। तो डेफिनेटली अगर सेलेनियम ने वो सारी कैपेबिलिटी डेवलप नहीं किया जो प्ले राइट में है अगले रिलीज तक, अगले 2-3 साल में, तो गया। क्योंकि अब जितने भी नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सब में प्ले राइट यूज करना स्टार्ट कर दिए लोग। तो प्ले राइट यूज कम होने का चांस सबसे बड़ा ये है प्रॉब्लम, कि अभी ये मैच्योर टूल है नहीं, क्योंकि जब तक सेलेनियम 10 साल 15 साल से है मार्केट में, कुछ भी सर्च करो सेलेनियम की प्रॉब्लम मिल जाएगी, सॉल्व हो जाएगा, चल रहा है ना, प्रूवन सोल्यूशन है, बंदे भरे पड़े हैं मार्केट में। प्ले राइट के केस में नहीं है ऐसा, अटक गए और बग निकला प्ले राइट में, तो सॉल्व होने में टाइम लगेगा। एक्सपर्ट्स नहीं है मार्केट में, अभी नया टूल आया है, स्टेबल नहीं है, तो टाइम लगेगा। लेकिन 2-3 साल में बता रहा हूँ ले लेगी, इसका हो जाएगा काम सेलेनियम का। तो इसलिए आपको जॉब लेते ही, आपकी जॉब सेलेनियम में लगे, सेलेनियम में काम करना स्टार्ट किया, 2 साल में प्ले राइट आना चाहिए अगली स्विच के लिए। और अगर सेलेनियम ने तब तक वो कैपेबिलिटीज, क्योंकि सेलेनियम भी इंप्रूव कर ही रहा है दिन ब दिन, नई कैपेबिलिटीज लाया, तो ठीक है, सेलेनियम चलता रहेगा एटलीस्ट तब तक। समझ गए? तो बात सब घुमा फिरा के पैसे की है। तो सेलेनियम भी कब करेगा काम? पैसा मिलेगा तभी तो डेवलप करेगा, उसको भी तो पता है। तो सेलेनियम के पीछे गूगल का सपोर्ट है, उसके पीछे माइक्रोसॉफ्ट का है, बड़ी बड़ी कंपनियां लगी है पीछे। बट लेट्स सी हाउ इट गोस। लेकिन कर सकता है प्ले राइट बहुत तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। खत्म हो गया क्या? तुम लोग गूगल से पूछ रहे हो क्या? क्या
लीगेसी सिस्टम वही हो गया ना, विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस, पुराने सिस्टम्स, उनको सेलेनियम नहीं कर पाएगा क्योंकि विंडो बेस्ड है, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है, तो नहीं होगा ना ऑटोमेट। वाह भाई, एक्सप्लेन ऐसा करना है उस हिसाब से। इसमें दो अब तीन तक इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चंस पूछने के बाद अब लास्ट में आ गए वही। मैंने तो ChatGPT का वो अलग बताता है, YouTube पे अलग रहता है। अरे यार, तो स्टैटिक इज अ मेथड। अगर कोई भी मेथड है, डायरेक्ट स्टैटिक कीवर्ड आपने लगा दिया, तो मेथड हमारा क्या हो गया? स्टैटिक मेथड। सिंपल सा। स्टैटिक मेथड कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली, मतलब ऑब्जेक्ट बना के भी कॉल कर सकते हो और डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो यूजिंग क्लास रेफरेंस। अब रियल टाइम एग्जांपल इसका क्या है? मैथ क्लास। मैथ क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं जैसे SQRT, पाव, ये सब चीजें सब स्टैटिक है क्योंकि उसको डायरेक्टली कॉल करना पड़ता है हमें। तो अगर कोई भी फंक्शंस ऐसे जो फ्रिक्वेंटली आपको यूज करने हैं, तो यू कैन क्रिएट स्टैटिक फंक्शंस so that directly you can call it. You don't need to create the object again and again for calling that function. ये भी है। प्रिंट बैकग्राउंड क्या होता है एक्चुअली? प्रिंट वाह, बैकग्राउंड स्प्रिंट में काम करते हो एजाइल में? जब नहीं करते तो कहाँ से पता होगा? तो स्प्रिंट बैकलॉग क्या होता है कि जैसे आपके पास 100 रिक्वायरमेंट है, अब इस एक ही स्प्रिंट में तो ऑटोमेट नहीं होगा। 100 में से 5 यूजर स्टोरीज लिया और इस स्प्रिंट में काम कर रहे हैं, तो बचा 95, तो वो स्प्रिंट बैकलॉग है। तो जो बचा हुआ टास्क है वही हमारा क्या है? बैकलॉग है। ये भी बोल सकते हो। एक प्रोडक्ट बैकलॉग हुआ, PPI। तो प्रोडक्ट बैकलॉग में से स्प्रिंट में भी तुमने चीजें दिया तो प्लानिंग कर सकते हैं ना, टुकड़े टुकड़े में। तो जो तुम ले रहे हो, जो बचा हुआ है, वही हमारा बैकलॉग है। अब उस बैकलॉग को स्प्रिंट बैकलॉग तुम कब बोल सकते हो? कि पर्टिकुलर तुमने एक स्प्रिंट में टारगेट किया 5 यूजर स्टोरी, बट एक बच गई, तो वो बैकलॉग हो सकता है। उसको स्पिल ओवर करके हम अगले स्प्रिंट में ले सकते हैं, तो वहां पे स्पिल ओवर आ जाएगा। हम्म 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 तो रेट्रोस्पेक्टिव जो मीटिंग्स होता है वो बेसिकली तब होता है जब प्रोडक्ट आपका रिलीज हो जाता है, तो उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग करते हैं जिसमें व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग। तो हमने क्या अच्छा किया और क्या गलत किया। तो अच्छा जो हुआ उसमें सबको अप्रिसिएट करना, जो गलत किया उससे सीखना, अगली बार गलती नहीं करना। तो वो तुम्हारे एक्सपीरियंस के ऊपर होता है कि तुमने क्या किया, क्या अच्छा गया, क्या बुरा गया। अब बुरा क्या हुआ कि बार बार साला इन्वायरमेंट डाउन हो जाता है, हमारी टेस्टिंग नहीं हो पाती है। तो रिलीज टीम को बोल के या इन्वायरमेंट टीम को बोल के हमें इन्वायरमेंट चाहिए हमेशा के लिए, ठीक है। या इन्वायरमेंट इतना स्लो रहता है कि हम क्लिक करते हैं तो घूमता ही रहता है, जो काम हम 5 मिनट में करना होता है वो 10 मिनट ले लेता है। जेनरिक चीज। तो ये तो ऑटोमेशन में भी एप्लीकेबल होगा, समझ रहे हो? तो दूसरी चीज कि अगर हम स्टोरी पॉइंट्स, मतलब यूज स्टोरीज को एस्टिमेशन हमने सही किया है कि डेवलपर को पहले वीक में कंप्लीट करना ही है सारी यूजर स्टोरीज, और सेकंड वीक में हमें मिलना ही चाहिए, तो वो मिलना चाहिए। क्योंकि डेवलपर ने डिले किया तो हमारा टाइमलाइन कम हो जाता है, फिर हमें फोर्सफुली करना पड़ता है चीजों को, जो कि नहीं हो सकता। तो हमसे चीजें मिस हो सकती है, हमें भी टाइम चाहिए होगा प्रॉपर टेस्टिंग के। और स्प्रिंट की साइज तुम बढ़ा नहीं सकते। 2 वीक है तो 2 ही वीक रहेगी, नहीं कि 2 वीक एक्स्ट्रा कहीं से घुसा लिया, नहीं हो सकता। तो डेवलपर के एंड से लेट नहीं होना चाहिए। अब डेवलपर बोलेगा कि मैं क्या करूं लेट हुआ तो, है ना? उधर से ही लॉजिक नहीं पढ़ रहा था या रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं थे, जो भी था, तो वो हम बोल सकते हैं कि भाई वो समझे उनका प्रॉब्लम क्या है, लेकिन हमें टाइम पे चाहिए। तो कि इस रिलीज में हमें 2 दिन बाद मिला, अब हमें 5 दिन की टेस्टिंग करनी थी, अब हमें सिर्फ 2 ही दिन, एक दिन इन्वायरमेंट डाउन नहीं रहा पूरा, ठीक है। तो 2 दिन में हम क्या तोप चलाएं? तो हमने इससे अच्छा मिसाइल बना लिया, चला दिया, जो होगा देखा जाएगा। तो हमारी टेस्टिंग कैसे होगी भाई? तो इसलिए हर चीज को अपना अपना सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तुम्हें जो सही लगता है कि ये होना चाहिए,
होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तुम्हें अपने इनपुट्स देने हैं। समझ गए? उसमें मैनुअल ऑटोमेशन का कोई मतलब, कुछ भी बोलो, ये वाला सबसे कॉमन होता है। इन्वायरमेंट ही 4 दिन डाउन हो जाता है, 2 दिन डाउन हो जाता है, मेल मेल चलने लगता है, कुछ फट जाता है, डेवलपर कोड फाड़ देते हैं कभी कभी आपस में ही, उनकी तरफ से लेट हो जाता है, रिक्वायरमेंट ही क्लियर नहीं होती है कभी कभी, तो बीए टाइम ले लेता है, फिर हम सजेशन देते हैं, फिर वो ऐड करता है, मॉडिफाई होती है चीजें, फिर चलती हैं, तो ऐसे चीजें चलती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। दीपा नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो महेश। सर। हाँ भाग्यश्री हेलो। बोलो। हाँ, हाउ टू हैंडल SSL इशू। एसएसएल इशू, तो हाँ एसएसएल तो एक हो गया सिक्योर सर्टिफिकेट लेयर, आई थिंक ना, एसएसएल यही होता है ना? नहीं नहीं, सिक्योर सॉकेट लेयर। एसएसएल का मतलब क्या हो गया? सिक्योर सॉकेट लेयर। इसको हैंडल करने के लिए हम सर्टिफिकेट्स यूज करते हैं। तो जैसे कुछ कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं कि बिना सर्टिफिकेट्स के आप उनको ओपन नहीं कर सकते ना। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जनरली उस यूआरएल को कॉल करोगे तो पहले वो सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा आपके ब्राउजर में, फिर वो उसको तुम एक्सेस कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं एसएसएल। तो सिक्योर करने के लिए हमें उसके लिए फिर क्या चाहिए होता है? HTTPS। तो रेदर देन HTTP हमें क्या यूज करना चाहिए? HTTPS होना चाहिए वो इन्वायरमेंट। तो HTTPS रहने से वो सिक्योर हो गया, मतलब SSL इंप्लीमेंट हो गया उसके अंदर बाय डिफॉल्ट। ओके। हाँ, प्री रिक्विजिट ही रहे। आगे बताओ। तो क्वेश्चन नहीं है तो ये रिकॉर्डिंग्स सबने इसको डाउनलोड कर लो, दोनों दिन वाली। अच्छा हाँ, ऐड करता हूँ। और ये बड़ी काम की डिस्कशन थी, बड़ी हेल्पफुल रहेगी सबके लिए भी, ठीक है? तो कीप ऑन लर्निंग और कीप ऑन आस्किंग योर क्वेश्चंस। तो जब भी आप इंटरव्यू दोगे, रिकॉर्ड कर लो मोबाइल में। जैसे इंटरव्यू दे ही रहे हो, चाहे घर पे दे रहे हो या फेस टू फेस दे रहे हो, मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो। अरे रिकॉर्डर, वीडियो नहीं, ऑडियो। तो उससे क्या होगा कि आप जो कुछ भी किसी क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आपकी आवाज इधर रिकॉर्ड हो जाएगी, उसकी भले ना हो। तो आपको ये पता चलेगा कि आपने किसी चीज का आंसर कैसे दिया है। तो कभी आपको ये फील आएगा कि अरे मस्त इंटरव्यू गया, सारा क्वेश्चन मैंने बताया उसका। क्योंकि हो सकता है तुम सारे क्वेश्चन का आंसर जानते हो, लेकिन तुमने किस तरीके से बताया, क्या अप्रोच यूज किया, क्या एग्जाम्पल यूज किया, किस सीक्वेंस में बताया, दैट्स मैटर। तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था, कि वो तुम ऐसे नहीं पता कर पाओगे जब तक वो चीज तुम खुद सुनोगे नहीं। इसी को बोलते हैं रेट्रो। तो तुम अपनी चीजों को एक दो इंटरव्यू में फील करो और उस एरिया में काम करो कि किसी चीज को हम और अच्छे से कर सकते थे क्या। ठीक है, ओके। तो अगले वीकेंड से इस टाइम पे मैं दूसरी बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, और आप लोग को कभी भी क्वेरी रहे इकट्ठा करो और कभी भी आ सकते हो। तो 10-15 मिनट, आधा घंटे के हम डिस्कशन कभी भी कर सकते हैं, नहीं तो फोन पे भी कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, ठीक है? और 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपके पास है ही है। तो अगर आपको कल से दूसरी बैच ज्वाइन करनी है तो बताओ, मैं उस बैच में ऐड कर देता हूँ। डजेंट मैटर ऑनलाइन ऑफलाइन, इट्स योर चॉइस। अपने टाइम के हिसाब से बताओ कौन सा बैच ज्वाइन करना है, फ्रेमवर्क फिर से पढ़ना है, जो भी करना है तो उस बैच में मैं डाल सकता हूँ। अगर फ्रेमवर्क स्क्रैच से दोबारा पढ़ना है, क्योंकि वो सबका एक वीक एरिया हो जाता है, तो सेम अगले वीकेंड से 11 बजे ज्वाइन कर लो। तो जो 11 बजे वाली बैच है उसमें कुकुम्बर स्टार्ट होने वाला है, तो कुकुम्बर के बाद से वो सारी चीजें हैं, ठीक है? तो वहां से आप दोबारा कंटिन्यू कर सकते हो और प्रॉपर पढ़ सकते हो, फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका इंटरव्यू तो चल ही रहा है, लेकिन 1-2 घंटे टाइम इधर देने से कुछ बुराई तो है नहीं, रिवाइज हो जाएगा। तो इसको लर्निंग कंटिन्यू रखो, उधर अपने हिसाब से प्रिपरेशन करते रहो। और उससे ये भी फायदा होगा कि उसी टाइम ड्यूरेशन में तुम्हें अलग से भी कोई क्वेश्चन होगा तो तुम यू कैन आस्क, ठीक है? तो मान के चलते हैं कि आपका बैच ओवर नहीं हुआ, नाउ यू हैव बीन मर्ज्ड विद 11 पहली बैच के साथ, ठीक है?
तो आप पिंग मुझे करो, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, जिसको जिसको ज्वाइन करना है वो कुकुम्बर से स्टार्ट होने वाला है। सर ठीक 1 है। बजे की नई बैच स्टार्ट होने वाली है क्या आपकी नेक्स्ट वीकेंड से? हाँ तो हाँ, नेक्स्ट वीकेंड से 1 बजे नई बैच स्टार्ट होगी। कोई है क्या रेफरल? 1 बजे में कहाँ से, आप शुरू से करने वाले हैं या कोई से? हाँ, पहला क्लास से। अच्छा पहले ही क्लास है, ठीक है। अब यही जगह खाली होगी तभी तो इसी पे बनेगी नहीं दूसरी बैच। ठीक है। तो अब मेरे को डिसाइड करना है कि इसको इस बैच में अब मैं सेलेनियम जावा ही स्टार्ट करूं कि सेलेनियम विद पाइथन करूं कि या प्लेराइट, तीनों की डिमांड है मेरे पास। तो ये मुझे अभी डिसीजन आज शाम तक लेना है, कहाँ कितने कैंडिडेट किस में है हमारे पास, उसके हिसाब से, है ना? ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।